Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to solve our next exercise, that is 6.5. Up till we have completed exercise 6.4. Okay, now today we are going to solve the exercise 6.5 on your page number 83 in your book. So the first question is saying that divide using the multiplication method. Okay, we need to divide by using the multiplication method. Okay, now as we need here, first part is given that a part is given here 36 is need to divide by 9. सो हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है, हमें डिवाइड जो करना है वो मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है. सो कैसे करेंगे हम 9 हमें डिवाइड किससे करना है 36 को डिवाइड करना है. किससे करना है 9 से करना है. सो व्हाट इज़ द 36. हमें जिससे डिवाइड करना है उसे हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल दैट द नंबर विच वी नीड टू डिवाइड. The number which we need to divide, what we call that number. ये जो नंबर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज डिविडेंड. दिस इज डिविडेंड. ओके, एंड द नंबर बाय विच वी आर डिवाइडिंग दैट इज कॉल्ड डिवाइजर. Okay, the number by which we are dividing that is called divisor, and the number to which we are dividing is called as dividend. Okay, and the result what we will get, and the result which we will get, that will be called it as an quotient. Okay, so it will be called it as an quotient. Okay, what we will call it as a quotient. Okay, so 36 is an our dividend and 9 is an our divisor, and here the result which we get, it will be an quotient. Okay, now we need to divide this in the by using the multiplication method. So हमें जिस नंबर को हमें डिवाइड द नंबर विच इज़ एन अवर डिविडेंड, हमें वो नंबर लेके आना है 9 डिवाइज़र से. यानी हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो डिवाइज़र नंबर जो हमें दे रखा है, जो 9 दे रखा है, 9 की टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है. इन हाउ मेनी टाइम्स द 36 वी विल गेट इन द टेबल ऑफ 9. ओके, what we need to find it out, we need to find it out that in how many times the 36 will come in the table of 9. Okay, again I am saying we need to find it out that how many times the number 36 will come in the table of 9. Okay, so we will write it here, the table of 9, that is this is our first question, so I am going to explaining all the steps, then from the second question we will do direct solutions. Okay, so 9 multiplied by 1, what we will get 9. 9 multiplied by 2 we get 18. 9 multiplied by 3 we get 27. 9 4 the 36. So here we get 9 4 the 36. Correct. Here we having 36. हमें क्या चाहिए था 36 चाहिए था, तो हमें मिल गया है 36 यहाँ पे. So our answer is 9 multiplied by 4 we get 36. So here quotient, our जो quotient होगा, our quotient is equals to 4. तो हमारा quotient क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. करेक्ट. Similarly if I say that the B part 64 we need to divide it by 8. So अब हमें यहाँ ये फाइंड आउट करना है कि 8 की टेबल में 64 कितने टाइम में आता है. 8 की टेबल में 64 कितने टाइम में आता है. स्टार्ट द काउंटिंग ऑफ टेबल. 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 6, 8 8 जा 64. So it will be 8 8 जा it is an 64. So here this we having, so quotient is equals to 8, क्योंकि 8 की टेबल में 8 टाइम्स में 64 आता है. सो 8 विल बी आवर क्वेश्चन. ओके, सिमिलरली इफ आई डू द सी पार्ट, दैट द 60 डिवाइड बाय 6, तो 6 की टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है. हमें किसकी टेबल बोलनी है, जिससे हमें डिवाइड करना है उसी की हमें टेबल बोलनी है. तो हमें किससे डिवाइड करना है 6 से डिवाइड करना है. किसको 60 को. तो 6 की टेबल में ये देखना है कि 60 कितने टाइम्स में आता है. करेक्ट. तो 6 की टेबल में वी नीड टू फाइंड इट आउट इन हाउ मेनी टाइम्स वी गेट द 60. ओके, सो स्टार्ट द काउंटिंग द टेबल ऑफ 6. सो 6 1 6, 6 10 जा 60 होता है. एज वी नो दैट 6 10 जा 60, so 6 10 जा इज 60. सो
10 is our quotient, is our answer. So 10 is our answer. Okay. Similarly, if I do its k part, that is 81 divided by 9. Okay. So here we need to find it out कि 81 जो है वो 9 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है. 81 जो नंबर दे रखा है हमें, जो डिविडेंड है 81 क्या है हमारा यहाँ डिविडेंड है, और 9 क्या है डिवाइज़र है. 9 इज एन अवर डिवाइज़र. ओके है ना. हमें क्या मालूम है, जो सेकंड नंबर जिससे हमें डिवाइड करना है उसे हम डिवाइज़र कहते हैं, और जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसे हम डिविडेंड कहते हैं. करेक्ट. एंड द रिजल्ट विच वी गेट दैट इज कॉल्ड एज अवर क्वोशिएंट. मीन्स रिजल्ट क्वेश्चन किससे कहते हैं कि 9 की टेबल में जितने टाइम्स में 36 हमें मिला है उसे हम क्वोशिएंट कहते हैं. ओके. सो अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि 81 जो है 9 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है. सो हमें किससे डिवाइड करना है 81 को, 9 से. तो हम 9 की टेबल बोलेंगे. 9 की टेबल 81 कितने टाइम्स में आता है. 9 9 जा 81, 9 9 जा इज 81. सो 9 9 जा 81. सो द क्वोशिएंट इज एन अवर 9. ओके. क्योंकि 9 की टेबल में 9 टाइम्स बोलने पे हमें 81 मिलता है. सो इट इज अवर 9. करेक्ट. So do its all remaining part. Now going to solve its second question. Divide using long division method. Divide using long division method. Okay. So here first part is 46 divided by 2. 46 is needed to be divided by 2. Okay. So how we divide it by 2? We need to divide it this manner. हम सभी को मालूम है डिवाइड कैसे करते हैं, इसी मेथड से करते हैं. सो द नंबर इज, दिस इज एन अवर डिविडेंड. सो डिविडेंड हमेशा कहाँ लिखा जाता है, अंदर की तरफ. तो हियर इज ऑलवेज बी एन डिविडेंड. यहाँ कौन आएगा हमेशा, डिवाइज़र आएगा. ओके. यहाँ कौन आएगा हमेशा, क्वोशिएंट आएगा. एंड हियर द रिमाइंडर. ओके. नीचे कौन आएगा हमेशा, लास्ट में रिमाइंडर आएगा. ओके. यहाँ से सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर हमें नीचे कोई ऐसा कोई नंबर रह जाता है जो डिवाइड नहीं होता है डिवाइज़र से, डैट विल बी कॉल्ड इट एज एन रिमाइंडर. मीन्स ऐसा कोई नंबर जो डिवाइज़र से छोटा होता है. एंड रिमाइंडर इज ऑलवेज बी लेस देन डिवाइज़र. यहाँ जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है. करेक्ट. द रिमाइंडर इज ऑलवेज बी लेस देन डिवाइज़र. ठीक है. तो ये जो है ये हमारा क्या है, डिविडेंड है. ठीक है. ये कौन है हमारा, डिवाइज़र है. ठीक है. दिस इज एन अवर डिविडेंड एंड दिस इज एन अवर डिवाइज़र. ओके. सो डिवाइज़र, डिविडेंड एंड द रिजल्ट विच वी गेट एट इज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. ओके. नाउ वी नीड टू सॉल्व द अवर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके. सो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने ये किया है, जो ये क्या हमारा डिविडेंड, और डिविडेंड को हम कहाँ लिखते हैं, अंदर की तरफ. सो इट इज़ एन 46. ये क्या हमारा डिवाइज़र है, डिवाइज़र को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ बाहर की तरफ. सो इट इज़ 2. ओके. सो अब हमें देखना है कि 2 की टेबल में पहले हमने चेक करना है कि 4 जो नंबर है वो 2 से बड़ा है. सो 4 जो है डिविजिबल होगा 2 से. सो 2 2 जा 4, इट विल बी 2 2 जा 4. ओके. वी गेट रिमाइंडर 0. 6 को नीचे उतारा. 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 3 जा 6. सो इट विल बी अगेन ऑन डूइंग सब्ट्रैक्शन वी गेट 0. सो अब क्वोशिएंट इज, सो द क्वोशिएंट इज 23. 23 टाइम्स अगर हम 2 की टेबल बोलते हैं तो हमें 46 मिलता है. आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो कि इफ़ वी काउंट द टेबल ऑफ 2 फॉर द 23 टाइम्स, और इफ़ वी मल्टीप्लाई 23 by 2 we get the number 46. Okay. B question he is given here that 38 को डिवाइड करना है 3 से. so here डिविडेंड कौन है, 38 अंदर लिखेंगे. डिवाइज़र कौन है, 3 बाहर लिखेंगे. अब हमें चेक करना है सबसे फर्स्ट नंबर 3. 3 is equals to 3, so we can divide 3. 3 1 जा 3. On subtracting we get 0.
नाउ 8 को नीचे लेके आए, 8 नीचे आ गया। 3 की टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 8 नहीं आता है। 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाता है। 9 तो आगे चला गया, तो हमें 8 से पहले ही वाला नंबर लेना है, 8 से आगे नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। 8 से आगे नहीं जाना है, हमें 8 से पहले ही रुकना है। सो 8 से बिफोर 8 व्हाट विल गेट इन टेबल ऑफ 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वी गेट हियर 3 2 जा 6। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम द 8 वी गेट हियर 2 as a remainder. So here our quotient is n equals to 12 and our remainder is equals to 2. ओके, क्योंकि जो 2 है वो अब 3 से छोटा हो चुका है, तो अब ये और डिविजिबल नहीं होगा 3 से, तो जो 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। करेक्ट। डूइंग इट सी पार्ट, that is 92 divided by 4. So here 92 divided by 4. So 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पीछे कितना रह जाएगा 1। 2 को नीचे उतारेंगे, इट विल बी 12। 4 3 जा 12। ओके, 4 3 जा 12। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट इट हियर 0। करेक्ट। डी पार्ट इज 66 को डिवाइड करना हमें किससे, 2 से। सो इफ यू डिवाइड 66 बाई 2, 2 3 जा 6, हम पहले 6 को देखेंगे, 6 को डिवाइड करना है। 6 जो है बड़ा है 2 से, तो हम पहले 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो ऑन डिवाइडिंग 6 वी गेट बाय द 2 वी गेट 3, 2 3 जा 6, सो इट विल बी 0, गेटिंग डाउन 6, सो इट विल बी अगेन 2 3 जा 6, सो we get it 0 at here. So our quotient is, here our quotient is 23, here our quotient is 33. Okay, in the same manner if I do k part of it, that is 99 divided by 5, so what will get here, 99 को डिवाइड करना है 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाता है, सो विल गेट 5 1 जा 5। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 4। अगेन 9 को नीचे उतारो, 49। सो 5 9 जा 45, 5 10 जा तो 50 हो जाता है, आगे चला जाएगा 49 से, हमें 49 से आगे जाना ही नहीं है, तो 5 9 जा 45, सो 5 9 जा 45। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे कितना रह जाएगा, ये 4, 4 में से 4 गए, पीछे बचा 0, सो द रिमाइंडर इज 4। सो अवर क्वोशिएंट, हियर अवर क्वोशिएंट, क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, दैट इज 19 एंड द रिमाइंडर को शॉर्ट फॉर्म में आर लिखते हैं, दैट इज 4। ओके, सो डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज।